نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا نورانی قاعدہ کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی پہلی تختی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حروف تہجی، ٹھیک ہے، حروف الحجاب بھی ان کو کہتے ہیں۔ حروف الحجاب کی ان کو پروناؤنس کرنا، کیونکہ ہم اپنی اردو زبان میں ان کو ذرا مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو ان کی پوری صفات کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے الف، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہماری اردو زبان میں اور عربی زبان میں کامن ہوگی، میں کوشش کروں گی کہ ہم اس کو آسان ہی رکھیں۔ الف، الف تو ہماری اردو زبان میں بھی نارمل ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے با، الف با، اور با ادا کرتے ہوئے ہمارے جو دونوں ہونٹوں کا اندرونی حصہ ہے وہ آپس میں ملتا ہے، جو تری والا حصہ ہے، اور وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے۔ الف با، تا، تا، تا بھی ہمارا یہ ایک اردو زبان میں ہم اس کو بھی نارمل ایسے ہی پروناؤنس کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے اس کا مخرج آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ ہم بہت آسان رکھیں گے اپنے اس لیسن کو۔ الف با تا سا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سا جو ہے اس کو بہت غور سے دیکھیں، اکثر ہم یہ سا پڑھتے ہوئے سا پڑھ جاتے ہیں، یعنی اس سا میں اور سین میں کوئی فرق نہیں کرتے، جبکہ قرآن پڑھتے ہوئے سا میں اور سین میں واضح فرق کیا جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ تو سا ادا کرتے ہوئے جو ہماری زبان کے کنارے ہیں وہ اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ٹچ ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی ہماری زبان جیسے باہر کی طرف آتی ہے، سا سا، ٹھیک ہے۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، جیسے ہم سین ادا کرتے ہوئے سین کی آواز میں ہم سیٹی کی آواز نکالتے ہیں۔ سا، الف با تا سا سا سا، ٹھیک ہے۔ سا کو بہت دھیان سے دیکھیں، الف با تا سا جیم ہا۔ اب یہ دیکھیں جیم ہماری اردو زبان میں نارمل ویسے ہی ادا ہوتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، جبکہ جو ہا ہے یہ ہا، اس ہا کو ادا کرتے ہوئے ہم ہا کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، جو آگے آئے گا نیچے یہ والا ہا۔ اس ہا کو ذرا بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو یہ ہا ہے الحمد والی، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ ہمارے حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، اور ایسے نکلتا ہے جیسے نکالتے ہوئے کوئی ہوا سی بھر جاتی ہے منہ میں، ٹھیک ہے۔ ہا ہا ہا، ٹھیک ہے۔ اس کو اور ہا کو مکس نہیں کرنا، یہ ہماری بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں ادا کرتے ہوئے۔ الف با تا سا جیم ہا خو۔ اب یہ جو خو ہے یہ ایک تو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی پور پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے جو پور پڑھے جاتے ہیں، الفاظ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے ہمارا منہ گول ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، اور اس کو پڑھتے ہوئے گلے میں تھوڑی سی خراش سی محسوس ہوتی ہے، یعنی یہ حلق کے اوپر والے حصے سے، جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خو، جیسے خراش سی ہوتی ہے ہمارے گلے میں، خو خو۔ الف با تا سا
जीम, हा, खो, दाल, जाल। अब ये देखें, दाल तो हमारी उर्दू जुबान में नॉर्मली हम जैसे पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ा जाता है, जबकि जाल, ये जो जाल है, जैसे मैंने आपको सा का मखरज बताया, जाल का मखरज भी सेम वैसा ही है, इन दोनों का मखरज सेम है, ठीक है। ये जो जाल है, जैसे सा में मैंने आपको बताया कि हमारी जुबान की जो ये पूरे किनारे हैं, पूरे जुबान के किनारे, ठीक है, ऊपर वाले दांतों के किनारों से टच हो रहे हैं और थोड़े से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो नरमी के साथ ये अल्फाज अदा होते हैं, सा, राल, राल, ठीक है। ये राल भी ये अल्लज़ीना वाला राल है, ठीक है। हम इस राल को और जा को मिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। राल इसकी अपनी एक अलग से प्रोनाउंसिएशन है और जाल की अलग से है, जा जो है, ये जो जा है, ठीक है, ये सख्ती से पढ़ा जाता है, जा जलजले वाला, और ये जो राल है ये नरमी से पढ़ा जाता है, रो, रो, जा, जा, ठीक है। ये जा आप देखें, ये सख्ती से पढ़ा जा रहा है और इसका मखरज ये है कि हमारे दोनों दांतों के किनारों के दरमियान में हमारी जुबान की नोक लग रही है, ठीक है, यानी दोनों दांतों के किनारे हमारे बंद हो रहे हैं और फिर उनके बीच में आकर जुबान की नोक लग रही है, तो जा सख्ती से अदा हो रहा है। सीन, सीन का मखरज भी सेम है, यानी जा और सीन, ये तीनों सख्ती से अदा होते हैं और इन दोनों का, सॉरी तीनों नहीं, दोनों, और इनका मखरज भी सेम है, ठीक है। जा, सीन, अब देखिए सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि हम सा अदा करेंगे तो सा अदा करते हुए सीटी की आवाज नहीं आएगी, बस इसको नरमी से पढ़ेंगे, सा, सीन, सा, सीन, ठीक है। अब मैं ये जो एक जैसे हरूफ जिनमें हम गलती करते हैं वो मैं एक साथ पढ़ूंगी ताकि आपको फर्क वाजे हो। जाल, जा, जाल, जा, ठीक है। आगे शीन, शीन, शीन तो हम अपनी उर्दू जुबान में ऐसे ही अदा करते हैं। सोद, सोद, सौद, अब ये देखें, ये जो सौद मैंने अदा किया है, ये सीन, जिस तरह हमने सीन और जाल का मखरज मैंने बताया, ये भी सेम वहीं से निकलता है, सिर्फ फर्क ये है कि ये भी पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि जब हरूफ मोटे जो पढ़े जाते हैं उनको पढ़ते हुए हमारा मुंह गोल हो जाता है, तो बस सीन और सौद में फर्क ये है कि सीन बारीक पढ़ा जा रहा है और सौद मोटा पढ़ा जा रहा है, यानी इसको पढ़ते हुए हमारा मुंह गोल हो रहा है, दोनों का मखरज सेम है। जा, सीन, शीन, सोद, दोद, दोद, दोद। अब ये देखें, इसका मखरज भी इसको ऐसे अदा करें कि ये जो हमारे जुबान का जो तरफ का एक तरफ का, एक साइड का, चाहे आप इसको बाईं तरफ लगाएं चाहे आप इसको दाईं तरफ लगाएं, ये जो हमारे पिछले 5 दाढ़े हैं उन इसकी करवट लगती है, तो वोद, वोद, वोद ऐसे अदा होता है, ठीक है। उसके बाद है तो, तो अब ये देखिए, इस ता में, ये जो ता है ऊपर वाली दो नुक्तों वाली, ता में और तो में हमें फर्क करना होता है। नॉर्मली हम कुरान पढ़ते हुए इस ता में और तो में फर्क नहीं करते। तो ये देखिए, ये जो गोल नुक्तों वाली, दो नुक्तों वाली ता है, इसको बारीक नरमी से पढ़ा जाता है, जबकि ये जो तो है, ये तो, इसको मोटा पढ़ा जाता है, यानी हम जब इसको अदा कर रहे होते हैं तो हमारा मुंह गोल हो जाता है, यानी हमारी जो जुबान की नोक है ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से, यानी जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना दांतों का, ऊपर का बिल्कुल जड़ वाला हिस्सा, वहां पर किनारे पर जाकर लगती है, तो, तो, तो ऐसे। उसके बाद है रो, रो भी मोटा पढ़ा जाता है और इसका मखरज भी सेम सा और दाल की तरह है, ठीक है। सा और दाल नरमी से पढ़े जा रहे हैं लेकिन मखरज सेम है, रो का मखरज भी सेम है, यानी हमारी जुबान का किनारा ऊपर वाले दांतों के किनारों के साथ टच हो रहा है लेकिन हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं, रो,
नरमी से पढ़ रहे हैं पर गोल मुंह हो रहा है। सा, दाल, लो। ठीक है, जो जिनके मखरज सेम है वो उनको भी एक साथ पढ़ देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। सा, दाल, लो, आइन, आइन। अब ये देखिए, अलिफ और आइन में हम फर्क नहीं करते। अन आमता, ठीक है, कुरान का एक कलीमा है अन आमता, जबकि हम उसे अन अमता पढ़ते हैं। नॉर्मली जो लोग तजवीद से ज्यादा वाकफियत नहीं रखते वो उसको अन अमता पढ़ते हैं, जो कि गलत है। अन आमता, ठीक है। अन यानी अलिफ को अलग से प्रोनाउंस करना है और आइन की अलग से आवाज होती है। और ये जो आइन है ये वस्ते हलक से निकलता है, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, जहां से हमने हा की प्रैक्टिस की थी। हा और आइन, इन दोनों का मखरज सेम है। अब मखरज हर्फ के निकलने की जगह को कहते हैं, जो मैं बार बार मखरज का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ कि मखरज का मतलब है कि हर्फ के निकलने की जगह, यानी कहाँ से हम अपना हर्फ अदा कर रहे हैं। आइन, आइन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ये आइन ज्यादातर लोगों का प्रॉपर नहीं निकलता। इसके बाद है गैन, गैन। अब ये जो गैन है, गैन और ख, इन दोनों का मखरज सेम है, ठीक है। ख ऊपर वाले हल का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां से हमने अदा किया था। गैन भी ये एक तो मोटा पड़ा जाता है, दूसरा ये हलक का ऊपर वाला हिस्सा है वहां से अदा होता है गैन, और इसको मोटा पड़ा जाता है, ये भी याद है, गैन। उसके बाद है फा, फा, ठीक है। फा, फा हमारी नॉर्मल जुबान की तरह, जैसे हम उर्दू जुबान में पढ़ते हैं वैसे ही है, फा। उसके बाद है कौफ। इस कौफ में और इस काफ में, इसमें भी बहुत फर्क करने की जरूरत है। ये जो कौफ है ये हमारा जो गले में, हमारे हल्क में जो एक कौवा सा होता है, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा सा या लोथड़ा सा आप उसे कहें, जो हमारे गले में लटकता हुआ नजर सा आता है, वहां पर जाकर हमारा जो जुबान का बिल्कुल स्टार्ट का हिस्सा है वो ऊपर जब टच होता है तो कौफ अदा होता है। ये देखिए, कौफ, कलकला, ठीक है। एक 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 उसे इक नहीं पढ़ना। ये जो कुरान की सबसे पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये जो काफ है इसमें फर्क करना है, और इस काफ में, ये किताब वाला काफ है, इसमें फर्क करना है। ये किताब वाला काफ तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में, लेकिन ये जो नुक्ते वाला काफ है इसको एक तो मोटा पढ़ा जाता है, दूसरा इसमें ये जो हमारा गले में, हमारे हल्क में जो कौवा है उसके साथ हमारी जुबान टच होती है तो कौफ अदा होता है। कौफ, कफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हा। अब ये जो हा है और हमजा, हा, हमजा, ये दोनों हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा होते हैं। यानी हमने ये देखा कि हलक के तीन हिस्से हो गए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा। और हा और हमजा, इनकी भारी आवाज होती है, ये नीचे सीने की तरफ से जो हिस्सा है हलक का, वहां से अदा होते हैं। हा ये थोड़ा भारी होता है। हमजा, या। अब मैं एक दफा फिर सारे पूरी तख्ती को रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैंने साथ साथ मखारिज भी बताया आपको। और अब इंशाल्लाह मैं पूरी तख्ती को एक बार प्रॉपर पढ़ देती हूँ इंशाल्लाह। और फिर आप ये पूरे हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे पूरा वीक इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद मुझे अपना लेसन सेंड करेंगे और हम देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये हमारे हरूफ जो हैं इनका इनके जो अदायगी है वो दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, क़ाफ, दाल, ज़ाल, रा,
ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.